So yes, the definition of polygons is three or more sides. तीन साइड रही तो ट्रायंगल, चार साइड रही तो क्वाड्रिलेटरल, पांच साइड वाला पेंटागन, छह साइड वाला हेक्सागन, एंड सो ऑन. Then there is regular polygon and irregular polygon. Regular मतलब सारे sides equal, सारे angles equal. Irregular में equals होना जरूरी नहीं है. And uh, what is the formula to find the sum of all interior angle? It should be n minus 2 into 180 degree, and to find each interior angle it should be divided by n. So please let me know, क्या ये formula clear है? N minus 2 into 180 degree divided by n interior angle of a polygon. And then exterior angle is 360 divided by n. So these two formulas जो concept video में बताए थे, please let me know, clear, yes or no? ठीक है. Now if I ask कि tell me the interior angle of a pentagon, पेंटागन का, रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल बताओ कितना होना चाहिए? We got one answer. Let's make it 2, 3, 4, 5. कम से कम 10 आंसर चाहिए. वाणी, रुपेश, आदित्य. It should be 108 degree. And if I say कि there are 12 sides, so if there are 12 sides, tell me the interior angle. If there are 12 sides in a polygon, tell me the interior angle. So obviously you are going to use this formula, or you can use this as well. Exterior कितना आएगा? 360 divided by 12, 30 degree. तो exterior का जो supplement होगा वो आपको interior होगा, which is 150 degree. You can use this formula as well. So 10 into 180 divided by 12. So this comes out to be a 150 degree. So I hope ये वाला part आप सभी को clear है. ठीक है. Okay. So interior angle बता दिया, exterior angle बता दिया. Now can you find the number of diagonals in a pentagon? Number of diagonals in a pentagon. केत की आप 6 बोल रहे हो, कैसे आपने 6 लाया बताओ? सर कॉम्बिनेशन जैसे किया सर कि दो कोई भी एक वर्टेक्स लिया तो वो दो एडजेसेंट वर्टेक्स से तो बना नहीं सकता है, तो फिर वैसे 3 into 2 into 1 ऐसे कुछ करने का ट्राई किया, बट आई एम नॉट श्योर. ओके, ठीक है. अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो सीधा कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो. यस सर. हाँ, और फिर दो माइनस माइनस, करना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. दो माइनस नहीं, साइड्स माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ए भी सिलेक्ट हो सकता है, करेक्ट ए करेक्ट ही हो करेक्ट. गया होगा. गॉट इट सर. हाँ, So यही फॉर्मूला था, this बट वो comes out to याद be, याद. yes, यस. n into n minus 3 divided by 2. गॉट So इट सर. this is the formula for the number of diagonals, n into n minus 3 upon 2. So अगर pentagon बोला है, so I'm going to put the value of n is 5. So 5 into 2 divided by 2, which is 5. So there will be 5 diagonals. Let's count. AC, AD. AC हो गया, AD हो गया. Then
BD and BE, BD and BE, and finally CE. So there are 5 diagonals in a pentagon. So सभी लोगों को ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला? n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू इज द नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगॉन। ये चीज कॉन्सेप्ट वीडियो में नहीं थी, आप प्लीज नोट कर लो अपने नोट्स में और n रिप्लाई कर दो सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। भूमिका, इज दिस क्लियर? सर n-3 डिराइव कैसे किया हमने? ओके, इसी को सॉल्व किया। nc2 इज n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू यस माइनस n। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। ओके सर। हाँ ओके चलो, सो लेट्स solve some questions based on this. So before that, let's recall the properties of quadrilateral. The area of a parallelogram is L into B. Oh, sorry, base into height. The other formula will be L into B into sine of angle between them. Length into breadth into sin theta. अब आप सभी लोग रिप्लाई कर सकते हो, क्या पैरेललोग्राम में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होना नेसेसरी है क्या? यस और नो? आर द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral or a parallelograms are perpendiculars? डायगोनल्स परपेंडिकुलर होगी क्या, नेसेसिटी है? यस और नो? इट इज नॉट नेसेसरी कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहे। पैरेललोग्राम क्या मतलब, जिसकी दो साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल है वो होता है पैरेललोग्राम। सो लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड इफ आई ड्रॉ द diagonals, are they perpendicular to each other? The answer is no. क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगी? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी? रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में यस और नो। क्या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी? यस और नो? द डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी इक्वल होगा एंड ये भी इक्वल होगा। आर द डायगोनल्स इक्वल? यस और नो? Diagonals are not equal. Good. So this for the for parallelogram. Now एक ऐसी मिठाई बताओ जो रूम्बस के जैसे दिखती है, बहुत ही फेमस मिठाई है। दिखते कौन बता सकता है? बहुत ही फेमस मिठाई है जो रूम्बस के जैसे दिखती है। काजू कतली। काजू कतली, ये बढ़िया। केतकी ने और मतलब प्रो आंसर दिया, के क्या बात है। मतलब के स्क्वायर भी बोल सकते थे तुम। तुम्हें अगर इतना ही मैथ्स पसंद है केतकी तो के स्क्वायर ही बोल लिया होता। ठीक है, सो हम देखेंगे काजू कतली की तरफ। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे साइड्स काजू कतली के यानी कि रोम्बस के इक्वल होते हैं। सो एरिया ऑफ अ रोम्बस is half d1 into d2, where d1 and d2 are the diagonals. So it should be half d1 into d2. So कोई भी रेगुलर फिगर जहां डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, you can apply this formula half d1 d2. चलो लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज।
Are the diagonals perpendicular to each other? Reply in chat box with yes or no. क्या रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे? इट्स यस. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? The answer is again yes. The third question. Are the diagonals equal? The answer is no. So let's take a question based on rhombus. If I say diagonal 1 is 6 centimeter, diagonal 2 is 8 centimeter, find the perimeter of rhombus. चलो है 6 और 8, तो rhombus का perimeter कितना होगा? गलत क्वेश्चन. अनि आया नहीं आया? भूमिका आपका आया? भूमिका यूर देयर? yes sir, yes. आपका आंसर आया भूमिका, हाँ या ना? No sir. नहीं, ठीक है. और डायगोनल 6 और बाइसेक्ट हो रही, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 होगा, ये भी 3 होगा? हम्म. और दूसरा वाला 8 है तो वो भी बाइसेक्ट हुआ, तो 4 और 4 होगा. Yes sir. क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो साइड कितनी हुई? 5. कितनी हुई साइड भूमिका? 5. सो चारों साइड्स 5 हो जाएंगी. Mm-hmm. सो व्हाट इज द पेरीमीटर? 20. क्लियर अभी? Yes sir. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? इज दिस क्लियर? धनवंतरी, वानी? So it should be 20. Good. Okay. चलो. Let's move to the rectangle. I hope सभी को बर्फी पसंद होगी. This is a rectangle. What is the area for a rectangle? It should be length into breadth. क्या डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं? चेक करके बताओ. डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर लग रहे हैं, यस और नो? Diagonals perpendicular, yes or no? The answer is no. Does the diagonals bisect each other? Diagonals bisect करते हैं? The answer is yes. Are the diagonals equal? The answer is again yes. Square is all yes. Square में तीनों yes हो जाएगा. पतंग. So what is the area of the patang? सर क्या शायद होना रोम्बस चाहिए? होना रोम्बस का एरिया. यस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, यू कैन अप्लाई हाफ d1 d2. डायगोनल परपेंडिकुलर, यस.
डायगोनल बाइसेक्ट होती है क्या? सिर्फ शॉर्टर डायगोनल्स गेट बाइसेक्टेड, डायगोनल्स इक्वल है क्या? नो। एंड देन कम ट्रेपेजॉइड, इसको अमेरिका वाले ट्रेपेजॉइड बोलते हैं और हम ब्रिटिश का जो कॉपी मारते हैं हम इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। सो इसमें जो अपोजिट साइड है, मतलब एक ही पेयर पैरेलल रहेंगी, दूसरी पेयर नॉन पैरेलल रहेंगी, दैट इज द ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है, डायगोनल बाइसेक्ट भी नहीं है, डायगोनल्स इक्वल भी नहीं है। सो दिस आर द सम फॉर्मूलेस। और एक इसमें रहेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी एंड देन s माइनस डी। सो एक और चीज, ये ट्रेपेजियम था। हैव यू हर्ड ऑफ आइसोस्केलस ट्रेपेजियम? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम किसी ने सुना है? So what does it mean? So Non-parallel non-parallels. side are equal. Non-parallel sides are equal. So this is isosceles trapezium. मोर और लेस मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो मुझे पता थी वो तुम्हें दे दी है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ताकि ये वाली चीजें आप आपके नोट्स में ऐड कर सको। डन? Okay, now let's solve questions. Finding angles in a polygon. So here is the first question. ABCDE is a regular pentagon. O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle. What is the measure of angle? OEA. सब लोग अपना रफ वर्क निकालो, पेंटागन का डायग्राम बनाओ, O इनसाइड बनाओ एंड देन फाइंड एंगल OEA. ABCDE is a regular pentagon. O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle. What is angle OEA? Okay, good. कितने लोगों का डायग्राम ऐसा बना है? रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में यस और नो। ऐसा डायग्राम बना है, यस और नो? देवशीष का बना है, वाणी का बना है, भूमिका का भी बना, धनवंतरी का भी ऐसा ही बना, रुपेश का भी यही है, केतकी यस तुमने सर। भी ऐसा डायग्राम बनाया है? सर मतलब सिर्फ 2 ही जॉइन किए मैंने, सबको नहीं जॉइन किया है। सिर्फ हाँ फिर ठीक है, एओई और लेकिन एओ। दिखने में ऐसे ही दिख रहा था। हाँ बस सर लाइंस जॉइन नहीं किए बाकी वाली। अच्छा, लेकिन दिखने में ऐसे ही दिख रहा था। ठीक है। हाँ सो सर थोड़ा। ये सबसे बड़ी, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप लोग आंसर लाकर बताओ कितना आ रहा है।
अश्विनी आपने मॉक दी? नहीं सर। ठीक है, दे देना। हाँ राघव, सर। आपने भी मॉक नहीं दी अब तक, आपको भी देनी है। सर इसको इंटीरियर यस एंड सर। जीवन के फॉर्मूला से सॉल्व करना है। सर 60 है क्या? हाँ ठीक है, ये स्टेट में इंटीरियर एंगल ही लगाना है। और कैसे आया? अक्षय बताओ। 60। सर ओ पॉइंट ले लिया एक, कोई भी सेंटर में सपोज, तो हाँ फिर ज्वाइन किया, तो ओके। ए बी और फिर बी ओ भी इक्वल होंगे, और फिर इक्विलेटरल है ना, हाँ तो फिर उसकी वजह से 60 एंगल इधर हुआ। ठीक है। अब अगर ओ ई को ज्वाइन किया, हाँ तो सर ए बी इज इक्वल टू ए ई है, क्योंकि वो रेगुलर ए बी पेंटागन है। इज इक्वल टू ए है। हाँ ओके। और क्योंकि ए ओ इज इक्वल टू ए बी है, तो फिर ए इज इक्वल टू ए ओ भी होगा। एक सेकंड, ए बी इक्वल टू ए है तो और ए ओ इज इक्वल टू ए बी है, ए इज इक्वल इक्वल टू टू ए ओ। ए बी। हाँ ठीक है। तो फिर इसका एंगल ये पूरा 108 है, तो ये 48 हाँ हुआ, 48 होगा। ठीक है ओके। हाँ ठीक है। तो बाकी बचा हुआ एंगल डिवाइड बाय 2। सो बचा हाँ, कैलकुलेट। 132 डिवाइडेड बाय 2, दोनों 66 और 66 होने चाहिए। हाँ हाँ, तो थोड़ा विच कैलकुलेशन इज में गलत करेक्ट हुआ। है। ओके, यस सागरिका बोलो। कुछ नहीं सर, मेरा आंसर 66 आया था, इसीलिए हैंड रेज किया था। आंसर 66 सिक्स। डिग्री आएगा। हाँ। ठीक है। कैसे? बहुत सारे लोग इसमें गलती ये करते हैं कि दे जॉइन पॉइंट्स लाइक दिस। इक्विलेटरल ना, ऐसी की तैसी, सब पांचों इक्विलेटरल। चलो ठीक है जी। सभी ऐसा कुछ बना लेते हैं। सभी बोलते हैं ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो भाई 60 वाले पांच तो 300 ही हुए। 360 होता है ना एंगल। तो कहीं ना कहीं वो चीज उधर से गलत होगी। सो हम कैसे ये ट्रैप से बचे? जब भी एंगल के क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या क्या करो, जो भी साइड्स इक्वल है उसको पहले इक्वल मार्क कर दो। तो हम सारी साइड्स को पहले इक्वल मार्क कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल। नाउ 108 पूरा एंगल है, उसमें से 60 ये हो गया, तो बचा एंगल 48 डिग्री का। और फिर हमें बोला था कि ओ ई ए निकाल के दिखाओ। तो ओ ई ए निकालने के लिए पहले ट्रायंगल ज्वाइन करते। तो जैसे ही आप ये देखोगे ट्रायंगल ओ ई ए, वो कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है, आइसोस्केलस है या स्केलिन है? इक्विलेटरल है, आइसोस्केलस है कि स्केलिन है? चेक करो। ओ ई आइसोसेलेस ए है। आइसोस्केलस है तो ये 48 है और दोनों साइड्स इक्वल है। तो बचा 132 एंगल, दोनों को मिलेगा इक्वल, यानी 132 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 66 डिग्री दोनों को। सो क्या पूछा था? एंगल ओ ई ए, इट शुड बी 66 डिग्री। प्लीज रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ ये ना? Okay, let's try one more question of similar kind. ABCD is a square and AEB is an equilateral triangle. If point E is inside the square, find angle DEC. अनिमेश, एक बार फिर से चेक कर लो।
आदित्य अनम्यूट करना प्लीज। अच्छा माइक ऑफ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स वेट फॉर अदर, बाकी लोग क्या जवाब देते हैं। कुछ लोग 60 बोल रहे हैं, कुछ 75, कुछ लोग 150 बोल रहे हैं। संस्कार तो 90 डिग्री बोल रहा है, केतकी 105 बोल रही है। वाह, क्वेश्चन एक, आंसर अनेक। क्या शायरी मारी मैंने, एकदम लाइव शायरी। मतलब तुमको ज्योमेट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं शायर बन गया हूँ। क्वेश्चन एक, आंसर अनेक। ठीक है, संस्कार के साथ चालू करते हैं। संस्कार, तुम्हारा आंसर सबसे ज्यादा गलत है, इसलिए पहले तुम अनम्यूट करोगे। यस सर। ABCD स्क्वायर, चलो ठीक है, बना लिया। आगे सर ई पॉइंट मतलब डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है, डायगोनल बना ली। हाँ जी, बना ली डायगोनल। सर उनके इंटरसेक्शन पे ई पॉइंट ले लेते हैं। ओके, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ए भी इक्विलेटरल बोला है, राइट? यस अगर यस पूरा एंगल 90 का हुआ तो ये जो एंगल है दोनों 45 के होने चाहिए। यस सर। तो कोविड के पहले तक, जब तक हम 10th में थे, तो हमारे टाइम पे तो इक्विलेटरल में 60 डिग्री होता था। ये 45 कब से होना चालू हुआ? मतलब 2018 या 19 में सिलेबस बदला है क्या कुछ, संस्कार? नो सर, सर इसी पॉइंट की वजह से गलत हुआ मतलब। हाँ, तो फिर से ट्राई करो। रुपेश, तुम्हारा भी 90 डिग्री आया। तुम्हारा कौन सा स्टैंडर्ड था? CBSE था कि ICSE था? रुपेश, CBSE। CBSE में हो सकता है, SSC में तो बराबर पढ़ाया था, इक्विलेटरल यही 90। ठीक है जी, तो ये डायग्राम तो बहुत ही गलत है, मतलब बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा गलत आंसर किसने दिया है। दूसरा सबसे बड़ा गलत आंसर वो दिया है कौस्तुभ पाटिल ने, 130 डिग्री का। कौस्तुभ आप अनम्यूट करो प्लीज। यस सर। कौस्तुभ, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप SSC वाले हो, CBSE वाले हो या ICSE वाले हो? यस यस सर। SSC वाले गलत नहीं कर सकते, फिर भी बताओ कैसे किया। सर पहले इक्विलेटरल निकालो, ठीक है, चलो निकाल लिया इक्विलेटरल। हाँ, फिर सब 60-60 हो जाएगा, फिर DAE 30 हो जाएगा। चल ठीक है, DAE 30 डिग्री हो गया। आगे और DE ज्वाइन कर दो। DE ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। फिर हाँ वो उधर 75 आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये भी 75 हो गया, ये भी 75 हुआ। आगे फिर सर इस साइड का भी 75 आ जाएगा, राइट? ठीक है, चल इस साइड का भी 75 आ गया, राइट। हाँ 75 150 प्लस 60 प्लस 60, प्लस x तो इज ये इक्वल होगा टू 200। हाँ ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ आगे। फिर x निकालो सर। हाँ तो x कितना होगा तू बताना। 150 सर, 150। और तुम कितना बोल रहे थे? सर वो पेपर पे मैंने बहुत वो कर दिया, गंदा करके। ठीक है, सो आंसर शुड बी 150 डिग्री। सभी लोग एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो, क्लियर और शुड आई रिपीट दिस? हर्षल, देवोशीष, चिन्मय, क्लियर और नॉट? ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री में सारा खेल ही डायग्राम्स का है, डायग्राम बराबर तो सब कुछ सही। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि भाई ये 60 डिग्री, ये 30 है, तो ये आपने 75 लेकर आ गया, ये भी 75 हो गया। नाउ व्हाट इज एंगल CDE? CDE बताओ कितना होगा? एंगल CDE, इट शुड बी 15 डिग्री। 15 डिग्री। बढ़िया। लेकिन क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, स्क्वायर भी एक सिमेट्रिकल फिगर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो ई सेंटर पर आएगा।
तो अगर ये वाला एंगल हमारा 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 15 डिग्री का हुआ। सो 15 और 15 हो गए 30, तो बचेगा बाद में 150। तो आप चाहो तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ट्रायंगल डीईसी में देखोगे तो दो एंगल 15 डिग्री के आ गए, तो बचा हुआ एंगल 150 डिग्री का होगा। ठीक है, ये कह के मैं मेरे दो सॉल्यूशन समाप्त करता हूं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर एक डाउट है ये संस्कार सर, वो एई और एडी इक्वल कैसे क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन? एई और ईडी इक्वल कैसे करेंगे? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, यस सर, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, यस सर, गॉट इट। तो ये इक्वल है और ये भी इक्वल हुए फिर, यस सर, गॉट इट। राइट? ओके। बाय द वे तुम लोगों को कुछ याद आया? मॉक 1 में मैंने ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन डाला था, पेंटागन में स्क्वायर डाला था आई गेस, और एंगल पूछा था, तो समझ में आ रहा है कैसे करना था? यस सर। यस, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। छोटा सा दूसरा अनाउंसमेंट, शायद 26 या 25 को जो संडे आ रहा है उस दिन आपका नेक्स्ट मॉक रहेगा। बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, एनी टू एडजेसेंट यानी आजू बाजू के, बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट व्हाट एंगल? It should be 90 डिग्री। सो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। चलो, जिनके आंसर नहीं आए मैं उनसे पूछ रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल डी का एडिशन बताओ कितना होता है? जिनके आंसर्स नहीं आए उनसे पूछ रहा हूं। आर दे सप्लीमेंट्री एंगल्स? क्या ये सप्लीमेंट्री है? एंड दिस एंगल is also equal to this A wala angle, and if they are supplementary their addition is 2x plus 2y is 180 डिग्री। पहले ये रिप्लाई कर दो, ये चीज समझ में आई क्या ये इक्वेशन? यस और नो? 2x plus 2y 180 डिग्री होगा। मयूरी? So can I say x plus y is 90 degree? If I take 2 common, I will get x plus y as 90 degree. Now if x plus y, अगर मैं ट्रायंगल AOD को देखूं तो x और y दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे हैं तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो भी तो 90 डिग्री का होना चाहिए। So this angle is 90 degree, angle AOD. So they intersect at 90 degree. Please reply question number 3, clear or not? Sagarika, Devashish, Bhumika. Okay, perfect. चलो चलते हैं आगे। Yes, Sagarika, unmute करना please. यस सर। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया इसमें? आप पूरा रिपीट कर सकते हो क्या एक बार, क्योंकि मैंने मतलब मुझे समझा नहीं, मैं थोड़ा नेट लैग हो गया था इस कारण। ठीक है, एंगल्स बाइसेक्टर है तो ये एक्स एक्स वाई वाई हो गए। हाँ। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों। यस। ये पार्ट सच में पता है ना, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। यस सर।
So can I say 2x plus 2y is 180 degree Yes. और x plus y should be 90 degree. 90 degrees. Okay. तो ट्रायंगल AOD में 3 एंगल है, एक x है एक y है और तीसरा बचा हुआ एंगल है AOD. तो x plus y का एडिशन 90 डिग्री आ गया था. हाँ, तीनों समझ। एंगल्स का एडिशन 180 आता है, इसमें से ये 90 आया तो बचा हुआ 90 हुआ होगा. Yes. क्लियर अभी? Yes, sir. Thank you. ओके परफेक्ट. चलो यस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, जस्ट अ स्मॉल रिकैप. जल्दी से बता दो भाई लोगों, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी? अफसोस ये गलत जवाब, और इसके लिए आप जीत रहे थे 25 लाख रुपए. लेकिन अब आपको धनराशि मिलेगी मात्र 6,40,000 रुपए. काफी लोग 100√3 का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग 50√3 कह रहे हैं, कुछ लोग 192 कह रहे हैं. 192 तो और भी अलग है. चलो भाई, मतलब कहाँ से लाया ये 192? 192 सर मैंने वो ट्रिपलेट ले लिया. अच्छा ठीक है जी. और राघव जी इसका आंसर 72 दे रहे हैं. राघव जी आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज. यस सर. राघव 2 सवाल नहीं 3 सवाल. पहला, सीबीएसई वाले हो, आईसीएसई वाले हो कि एचएस ये वाले हो, कौन सा रहेगा? एसएससी सीबीएसई. सीबीएसई. तो हो सकता है तुम्हारा आंसर गलत हो. दूसरी चीज, क्या आपने ट्रायंगल्स के सारे वीडियोस देखे थे? सर मैंने उसको स्क्वायर समझ के सॉल्व कर लिया सर, ट्रिपलेट का. तो भी 72 नहीं आएगा. आएगा ना सर, फिर आएगा ना. और वो राइट एंगल और फिर हाइपोटेन्यूज को 25 हाँ 3 करिए. 25 कहाँ 20 से? 16 और 9. 20 16 और 9. 9. हमने 3 4 5 ट्रिपलेट सीखी थी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनके स्क्वायर्स भी ट्रिपलेट होंगे. और क्योंकि यहाँ पे 20 है तो आपने 20 को 25 भी पकड़ लिया, 9 को 16 भी बना दिया, 30 60 पे भी 9 नहीं दिया. तो मतलब एक गलती माफ होती है, तुम 3 3 4 4 कर रहे हो. ठीक है, फिर से ध्यान लगाओ और सही आंसर लाओ. और देखते हैं कौन कौन है. 100√3 वाले तो काफी लोग आ गए. धनवंतरी, आपका 100√3 आंसर मैं मान भी लूं कि वो करेक्ट है तो कैसे किया धनवंतरी? हेलो सर. हाँ धनवंतरी. 30 का अपोजिट हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, सो वो 10 So, आएगा. वेरी गुड. और 60 का अपोजिट √3/2 हाइपोटेन्यूज, मतलब. ठीक है. और तो फिर 10√3. लेंथ इनटू ब्रेड्थ ठीक है. सो 100√3. लेंथ. बढ़िया. धनवंतरी तुमसे 2 क्वेश्चन और है. पहला तुम्हारा सीबीएसई है कि आईसीएसई है? नहीं, एसएससी. अच्छा एसएससी है, फिर तो तुम गलती कर ही नहीं सकती हो क्योंकि मैं खुद भी एसएससी वाला हूँ. और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, तुम्हारी वो 2 सहेलियां है वो कहाँ है? सर खुशी उसकी नानी के यहाँ गई है, और सानिका का पता अच्छा, नहीं. उन शायद नाना के आ गई होंगी. चलो ठीक है. सो 100√3 सभी को क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दो प्लीज चैट बॉक्स में, यस और नो, इज दिस क्लियर? जिनके आंसर्स नहीं आए थे उनसे पूछ रहा हूँ. सर 192 है क्या? 192 कहाँ से ला रहा भाई तू? 192 क्या सोच के लाया तूने? सर अगर ये हाइपोटेनस 20 है तो ट्रिपलेट हो सकता है ना, 12 और 16. क्यों, किस खुशी में भाई? इसका जरूरी थोड़ी ना कि अगर ये 20 रहा तो ये ट्रिपलेट ही रहेंगे. इज इट नेसेसरी? फिर तो अगर मैं ऐसी बनाऊं तो भी ट्रिपलेट है, ऐसी बनाऊं तो भी ट्रिपलेट है, ऐसा ट्रायंगल बनाऊं तो भी ट्रिपलेट है ना? सभी जगह ये आपको 15 ही दिख रहा है.
ऐसा जरूरी है अक्षय? नहीं इसके सर। दो सॉल्यूशंस आ सकते हैं सर। हाँ, एक का शांत होगा, अब कौस्तुभ से बात करते हैं। हाँ कौस्तुभ बोलो। आप मुझे ट्रिपलेट निकाल के दिखाओ सर इसका 20 ट्रिपलेट किस खुशी में होंगे भाई? यहाँ पे अगर मैंने 30 डिग्री दे दिया है तो ट्रिपलेट किस खुशी में होंगी? 30, 3, 4, 5 में तो 30 डिग्री एंगल भी नहीं बनता। ओके सर, ओके, गॉट इट। ठीक है, ओके चलो। सो द आंसर शुड बी 100√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS? So this is 20, this has to be 20 upon √2. This is also 20 upon √2. So 20 upon √2 का स्क्वायर देखेंगे तो it will be 200. पहला मेथड, you can apply d square by 2. So 20 का स्क्वायर 400 upon 2 भी 200 ही होगा. So answer is 200. Perfect. चलो. So I hope आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है. Let me move to the next question. The length of a rectangle is a 50 meter and its breadth is 40 meter. A 3-meter wide path is made inside it in the middle, crossing each other. What is the area of the path? 50 बाय 40 का एक रेक्टेंगल है, उसमें 3 मीटर का कपड़ा बिछाया along the length, along the breadth, in the middle, crossing each other. What is the area of the path? संस्कार गलत है. Yes, it's 261. ठीक है. So let's find. भूमिका अनम्यूट कर सकते हो प्लीज. Yes, sir. भूमिका, तुमने कभी इंग्लैंड का झंडा देखा है? हम्म। ठीक है, चलो अच्छा है. तो अपन इस रेक्टेंगल, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालते हैं. इसका एरिया बताओ क्या हुआ होगा? सर लेंथ 47 50 नहीं, होल्ड ऑन, 47 किस मतलब बात में भाई? पूरा पूरा लेंथ पाथ 50. हाँ, हाँ 50 into और 3 हेड, सो 150, राइट. और ये जो वर्टिकल वाला है, इसका लेंथ 40 और वेट 3, तो ये 120. यस तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं इस टाइप से, तो 150 प्लस 120 270 होना चाहिए, लेकिन ये सारे लोग 261 बोल रहे हैं. बताओ -3 क्यों बोल और रहे 1 होंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि यहाँ पर ये जो 3/3 वाला स्क्वायर है, वो दोनों में गिनने में आ गया था, तो एक बार माइनस करेंगे. हेंस द आंसर शुड बी 270 माइनस 9 विच इज 261. सभी लोग एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो, इज दिस क्लियर और नॉट? Next question. In a rectangular park of dimension 40 meter and 30 meter, two crisscrossing walking trails are laid.
one along the entire length and the other along the entire breadth. If the width of each path is 6 meter, find the area of plot that is not covered by the two paths. निमेश आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज. निमेश अनम्यूट कर सकते हो. कितने तरीके से आंसर ला के दिखा सकते हो? कितने तरीके से? एक ही याद आ रहा है, और क्या हो सकता है? चलो देखते हैं, बताओ कौन सा किया. नॉर्मल वही लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करके बस माइनस कर दिया टोटल एरिया में से। 240 इसका 180 इसका है ना, -36 तो कितना हुआ, 420 में से 36 गए 384, तो आपने किया 1200 माइनस 384 विच इज 816. ठीक है जी, ओके. एक हम Apart from this, कि जो ग्रीन रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया निकाल के into 4 कर देते हैं. वेरी गुड, बढ़िया. तो पूरा अगर ये 40 था तो इसमें से अगर आधा काट दिया जाए तो 20 बचा है ना, और क्योंकि ये 6 था तो इसमें से भी 3 कट करेंगे तो इसका जो लेंथ आएगा वो 17 रहेगा, राइट अनिमेश? यस सर. और अगर इसको देखें तो ये पूरा 30 था, ये 15 हुआ, इसमें से ये 3 कट कर दिए तो ये 12 बचा. सो इसका जो एरिया आएगा 17 12 204 और 204 वाले 4 रहेंगे. सो 204 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 816. बिल्कुल करेक्ट है. सभी लोग ये बार रिप्लाई कर दो कि सेकंड वाला क्लियर और नॉट. यस अक्षय. सर पर इसमें ऐसा थोड़ी बोला है कि जो ट्रेल्स होंगे वो मिडल से जा रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. ओके, तो जो अब तीसरा वाला सॉल्यूशन होगा वो आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा. ठीक है अक्षय? यस सर. लेकिन स्टिल चलो मान लो कि अगर मिडल में है तो 816 वो क्लियर है. हाँ सर वो क्लियर है. ठीक है, चलो मान लो कि ये जो ट्रेल्स है मैं एकदम कोंटे में बना देता हूं लाइक दिस. ठीक है अक्षय, अनम्यूट रखना. यस सर. हाँ सर. सो ये 40 पूरा था, उसमें से ये 6 माइनस हो गया. कहना से दिस इज 34. हाँ. पूरा 30 है, उसमें से ये 6 माइनस कर देता हूं. कहने से दिस इज 24. यस सर. Now what is 34 into 24? Let's check. 24 4s are 96 का 6 carry 9, 72 plus 9 is 816. तो जब लेट्स से अगर इसको आप मूव भी करोगे ऊपर नीचे कहीं पर भी तो भी क्या होगा कि एरिया तो उतना ही रहेगा. ओके. हाँ. So it will be again 816, right? अच्छा. यस सर. So सभी लोग 3 मेथड्स क्लियर. देयर आर मोर 2-3 मेथड्स आई कैन ऐड, बट ठीक है, लेकिन समझने के लिए इतने सफिशिएंट है. सो प्लीज लेट मी नो तीनों मेथड आप सभी को समझ में आई. धनवंतरी, ओके चलो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Instead of walking along two adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut and saved some distance, and that distance is equal to half the longer side. यहां से इधर जाने के अलावा उसने इधर से जाना चूज किया तो उसने कुछ डिस्टेंस बचाया. क्वेश्चन है कि
which of the following can be the ratio of longer side to the shorter side? सर ये डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड यानी रेक्टेंगल वाला लॉन्गर साइड होगा ना? Yes, rectangle वाला longer side. क्वेश्चन काफी सिंपल है। कितने लोगों का आंसर आ गया? ओके, केतकी का आंसर ए आया है। केतकी अनम्यूट करो। ए कैसे लाया तुमने? सर इक्वेशन बनाई एक्चुअली, दोनों का सब्ट्रैक्शन लिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ और डायगोनल इक्वेशन बना के सब्ट्रैक्शन लिया, तो व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द लेंथ। ठीक है, मैं इसको सरल भाषा में बोलता हूं। तो अगर ये 5 है तो ये 12 है, हाँ तो ये 13 हो गया। यस तो 12 और 5 अगर साइड से जाता तो 17 किलोमीटर चलना पड़ता था। हाँ डायगोनल से गया तो 13 किलोमीटर चलना पड़ा। यस 4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस बचाया। यस क्वेश्चन में बोला इट शुड बी हाफ द लॉन्गर साइड, तो 12 का आधा तो 6 किलोमीटर हो रहा है, मतलब 6 किलोमीटर बचना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और तुम बोल रहे हो कि 4 है, तो ये डेटा मिसमैच है। ए आंसर नहीं हो सकता। ओके चलो, व्हाट अबाउट अदर्स? चिन्मय आप डी बोल रहे हो, क्या लॉजिक लगाया डी में चिन्मय? सर मैंने साइड्स को 3, 4 और डायगोनल को 5 कंसीडर करके बोला। वेरी गुड, 3, 4 है तो ये 5 है। अगर साइड्स के थ्रू जाए तो 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, डायगोनल्स के थ्रू 5 किलोमीटर चल रहा है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर बचा रहा है, विच इज हाफ द लॉन्गर साइड। दैट्स व्हाई सारे कंडीशंस मैच हो गए। ऑप्शन डी शुड बी द आंसर, है ना? ये क्या चिन्मय? यस सर, यही था। यस इट्स करेक्ट। सो बाकी लोग जिनके आंसर्स नहीं आए थे, यू डोंट हैव टू मेक एनी इक्वेशंस, भाई ऑप्शंस डालो, ट्रिपलेट लगाओ एंड यू आर डन। प्लीज रिप्लाई क्लियर और नॉट। चलो try this one. Area of a rectangular field is 144 meter square. If length is increased by 5 meter, its area increased by 40 meter square. Length of the field is, simple question है। अक्षय आप बी बोल रहे हो, किस रीजन से बी बोल रहे हो? सर सिंपल इक्वेशन बनाया, पहले L इंटू बी इज इक्वल टू 144 किया, ओके फिर L प्लस 5 इंटू बी इज इक्वल टू 184 किया। वेरी गुड, आगे? फिर वो L इंटू बी
प्लस 5 ही होगा सेकंड इक्वेशन। Okay, LB plus 5B is 184. फिर वैल्यू So सब्स्टिट्यूट कर LB दिए। is 144 plus 5B is 184, which means that 5B B is is equal 40, B is 8. So L into 8 is 144, which means that L is 18. ठीक है. yes Okay. So is this clear? ठीक है. What is the other way of solving this? Sir, I can option. directly use options. Yes, you can directly use options. तो वो भी एक other way हो गया. What is the third way of solving this? Let's say कि this is my length, and if I increase this with 5, area is increased by 40. So this is 40. अगर ये 5 है, so this has to be 8. तो directly मुझे breadth 8 मिल रहा है. और ब्रेथ अगर 8 मिल गया है, so I can find length, which is 144 by 8. That is 18. Please let me know, is this clear? ठीक है. सर ये solve. क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से भी कर सकते थे क्या? नहीं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है डिविजिबल वाले अश्विनी. तो ओके तीनों ऑप्शंस में फिर डाल के वापस चेक करना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ सर इसको ऑप्शन से कैसे करते थे? ऑप्शन से ऐसे करते थे कि अगर लेंथ 12 है और एरिया 144 है, तो ब्रेथ हमारा 12 हुआ. हाँ राइट. अब लेंथ अगर मैं 5 बढ़ा दूं, तो लेंथ 17 है और ब्रेथ 12 है. इनका प्रोडक्ट 204 आ रहा है, लेकिन मेरे को तो 184 चाहिए था. अच्छा ओके तो ये आउट हो गया. सिमिलरली इफ आई चूज दिस, एल अगर 24 है तो बी 6 है. अब अगर मैं 5 से बढ़ा दूं तो 29 इंटू 6, अगेन ये 184 नहीं होता है, ओके सर ये 174 हो रहा है ना? लाइक दिस. हाँ समझ Okay, now this is CAT 18 का क्वेश्चन. आई एम कोलकाता का सेट किया हुआ, जो इस साल सेट करने वाला है एग्जाम. चेक करके बताओ आपका आंसर आ रहा है क्या? Provided you should know what is the perimeter of a rectangle. So area of a rectangle is L into B and square of its perimeter. तो perimeter होता है 2 times of L plus B, और इसका स्क्वायर, this is in the ratio of 1:25. What you have to do is you have to just plug in the values for L and B. जो इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हुआ, that is your answer. चेक करो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी एल और बी की. So if you try to put option A, so B equal to 1, L equal to 3. चेक करते हैं. So 3 अपॉन क्या आएगा? 3 plus 1 4, 4 2 जा 8, 8 का स्क्वायर 64. तो पहला ऑप्शन तो 3/64 दे रहा है, तो ये तो नहीं हुआ.
क्या ये चीज समझ में आई? 3/64 आया है? धनवंतरी समझ में आया या नहीं? मयूरी, भूमिका, लेट्स चूज बी, जहां पे अपन एल को 4 रखेंगे और बी को 1 रखेंगे। तो न्यूमरेटर क्या होगा? 4 इंटू 1 विच इज 4। डिनोमिनेटर क्या हुआ? 2 इंटू 4 प्लस 1। So 4 plus 1 is 5. 5 into 2 is 10. 10 का square is 100. So it's 4 by 100. हो गया क्या? 1 by 25 हो गया. That's why answer B should be the answer. So yes, is this clear? Otherwise एक quadratic भी solve करोगे तो भी वही रेशियो मिलेगा. So ABCD is a rhombus and angle ACB is 30 degree. ABCD is a rhombus and angle ACB is 30 degree. If the side of rhombus is 10, find the area of it. रोम्बस का एरिया निकल के दिखाओ जल्दी से. कौस्तुभ 75 कैसे होगा बताओ? सर वो आएगा 5√3 और 5. एक सेकंड. कौन क्या आएगा? ओबी कितना आएगा? वो आएगा 5. ओके. और ओसी 5√3. ठीक है. आगे फिर 10 और 10√3 आ जाएंगे, राइट? ठीक है. सो एसी हमारा हो गया 10√3 और जो बीडी हो गया वो 10 हो गया. आगे फिर हाफ D1 इंटू D2. हाफ D1 इंटू D2. सो दिस हैज टू बी, ये 1 है, सो ये 5 है. सो 5 इंटू 10 इज 50√3. तो भाई 75 कहाँ से हुआ ये? ₹50√3 है ना कौस्तुभ? यस सर. आज पता नहीं क्या हो रहा है. हाँ. What about others? Is the question clear? 50√3 should be the answer. Please let me know. Yes or no? Clear or not? Mayuri, Devosies, Sanskar, Raghav. Yes, Raghav. Clear? Okay, perfect. Let's move to the next one then. The diagonals of a rhombus are 30 and 40. Can you find the area of the circle inscribed in it by two different methods? रोम्बस है. रोम्बस के अंदर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ऐसा कुछ बहुत ही गंदा बनाया मैंने, सॉरी. तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा? दिस द क्वेश्चन. इंस्क्राइब्ड इन इट. इंस्क्राइब्ड. सर वो 30 को हम लोग ये लेते हैं क्या फिर डायमीटर जो डायगोनल है? क्या है यहाँ पर? अक्षय आपका क्वेश्चन रिपीट करो. मतलब जो बीडी है उसको डायगोनल ये लेना है क्या डायमीटर? डायमीटर क्यों लेंगे? डायमीटर रहता तो सर्कल कुछ ऐसा बनता था. दिस इज नॉट इंस्क्राइब्ड. अच्छा पूरा उसके अंदर आना चाहिए. पूरा उसके अंदर आना चाहिए. तो सर मतलब हर एक साइड को टच करना चाहिए क्या?
हाँ ये देखो ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। ओके It should be 144 pi. अश्विनी 2 मेथड से आया, हाँ सर। बताओ कौन कौन सी। सर फर्स्ट इसमें मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB like half into 20 into 50 equals AOB equal to half into 20 into into 20 15, into 15। सो हाँ 150। हाँ आगे। हाँ उसको इक्वल किया मैंने रेडियस रेडियस ऑफ सर्कल इनटू हाइपोटेनस से। बढ़िया। सो अगर अपन यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दे, सो आई कैन ऑल्सो सी दैट एरिया ऑफ AOB विच इज 150 इज हाफ ऑफ OP into AB, where OP is the radius, है ना। यस। बढ़िया। सो आई कैन से दैट 150 इज हाफ ऑफ OP, हमें नहीं पता, और AB क्योंकि ये 15 है ये 20 है तो ये 25 हुआ, सो 25। सो 300 डिवाइडेड बाय 5, OP आ गया 12। सो OP 12 है यानी रेडियस 12 है, और रेडियस 12 है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर विच इज 144 पाई। सो यस, सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो 144 पाई क्लियर और नॉट, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्लीज लेट मी नो इज दिस मेथड क्लियर और शुड आई रिपीट दिस वन। की धन्वंतरी भूमिका क्लियर है नहीं है भूमिका। ओके, नाउ लेट्स लर्न द अदर मेथड। दूसरा मेथड क्या यूज किया अश्विनी। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू इन रेडियस इनटू लाइक R इनटू S किया। बढ़िया, यस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन, एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन इज स्मॉल r इंटू एस। सब लोग ये नोट कर लो, एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर बोल तो ट्रायंगल दिया, स्क्वायर दिया, पेंटागन दिया, हेक्सागन दिया, सो एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन भी बोल दो, यू कैन यूज स्मॉल r इंटू एस। सो इसका एरिया कितना है, हाफ 30 इंटू 40 विच इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू एस, वेयर r क्या है, r है इन रेडियस और s है सेमी पेरीमीटर। सो हाफ ऑफ 1200 इज स्मॉल r और सेमी पेरीमीटर, तो भाई साइड कितनी थी 25 25 25 25, तो पेरीमीटर आया हमारा 100 का, पेरीमीटर 100 है तो उसका आधा हुआ सेमी पेरीमीटर विच इज 60। सो ये 1, so this has to be 600, sorry this should be 200 आएगा। 50, so yes it should be 12। so radius 12 है तो area 144 पाई। क्वेश्चन 12 का मेथड 2 क्लियर और रिपीट। क्लियर, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदित्य वो हरीश पाटिल क्यों नहीं आया। अच्छा उसका खुद का माइक ऑफ है, ठीक है नो प्रॉब्लम।
चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अ पैरेललोग्राम. Find the area of a parallelogram with two of its sides measuring 16 and 24 and the angle between them is 30 degree. तो 16 और 24 का है और बीच में 30 डिग्री का एंगल है. इसका एरिया बताओ कितना हुआ होगा. Yes. So there are two ways to solve this. Area of a parallelogram is L into B into sine of angle between them. So 16 into 24 into sine 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है हाफ. दिस विल बी 16 into 12 which is 192. अगर आपको नहीं भी वैल्यू पता है तो भी आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो. सो अपोजिट साइड ऑफ 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस. तो 16 का आधा हुआ 8. नाउ अप्लाई बेस इनटू हाइट. सो बेस था हमारा 24 का और हाइट है 8 की, तो भी हुआ 192. प्लीज लेट मी नो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर और नॉट. ठीक है. One more interesting property of a parallelogram is if I join the diagonals, AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to AC square plus BD square. So that is sum of squares of side is equal to sum of square of diagonals. प्लीज एक बार नोट करके एन रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में. सर ये सिर्फ पॉलीगॉन में वैलिड है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में. तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है. यहाँ सब एप्लीकेबल होगा. ठीक है. सो 13th हो गया. 14th करते हैं. In a parallelogram ABCD of area 72 square centimeter, sides CD and AD have a length of 9 and 16 respectively. Let P be a point on CD such that AP is perpendicular to CD. Area of triangle APD is. इन दोनों में से कोई डायग्राम बना होगा आपका? प्लीज चेक. सर सेकंड वाला डायग्राम कैसे बनेगा? ओके. कुछ गलत किया है क्या मैंने? क्योंकि मैंने बोला ABCD कि is a parallelogram.
हाँ उन्होंने बोला P कि be a point on CD. CD, हाँ तो अंदर ही बनेगा ना, बाहर थोड़ी ना बनेगा। पॉइंट P is on CD. ठीक है ना, तो CD को एक्सटेंड करके बना लिया, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, CD पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्सटेंड किया और क्या। And if not this, then it will be like this. A, B, CD and AP is perpendicular to CD. ठीक है वानी? सर ठीक है, तो इससे सॉल्व कर लेते हैं और क्या। A, B, CD parallelogram. AP is perpendicular to CD. और क्या दिया है? AD का लेंथ है 9 और साइड CD is 9 whereas AD is 60. ठीक है, so what's the problem? ठीक है, let's find the area of this parallelogram. 72 is 9 multiplied by the height. So 72 divided by 9 is height. So height comes out to be an 8. अगर height 8 है, so in triangle ADP, I'm going to apply Pythagoras theorem. So 16 square is 8 square plus PD square. So after solving this, PD square will be क्या होगा? 16 square minus 8 square, 192 minus 64. So sorry, 256 minus 64, which is 192. So this will come out to be 8 root 3. So area of APD is half of 8 into 8 root 3, which is 32 root 3. So this was question number 14. Please let me know question number 14 clear हुआ ठीक से या नहीं हुआ? There are number सर of ways. Yes, 30-60-90 हर्षल. से भी कर सकते हैं, 30-60-90 से। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो 30-60-90। अगर तुम्हें ये मिल चुका है, ये 16 है और ये 8 है, तो डेफिनेटली अगर 16 और 8 मिल गया, ये हमारा अगर एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, और क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये √3 हुआ होगा। सो दिस विल बी योर 8 √3। तो अब आप बिल्कुल, आपके पास हाफ 8 into 8 √3, यही बोल रहे हो हर्षल आप? मैंने ऐसा किया था सर, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू साइन थीटा। हाँ बिल्कुल, तो एंगल 30 डिग्री मिल गया। तो ये 30 डिग्री मिल गया, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 30 डिग्री मिल गया, ये 90 है, तो ये 16 था तो ये 8 आ गया, ये 8 है तो ये 8 √3 आ गया, तो भी आ गया 32/√3 होगा। बिल्कुल कर सकते हो। सो यस, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर सभी को? यस और नो? यस सर अक्षय। ये 72 एरिया से हाइट कैसे निकाला, समझ में नहीं आया। ओके, मेरा वाला मेथड या जो अभी हर्षल ने बोला वो? नहीं नहीं, जो आपने बोला। सो कैन आई से 9 मेरा बेस है, सो 72 इज 9 into हाइट। सर 9 into हाइट क्यों किया पर? क्योंकि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। बेस अगर 9 को लिया तो हाइट वो वाली लूंगा जो अभी लिया है डायग्राम में। अच्छा अच्छा, वैसे ओके क्लियर? ओके सर, ठीक है। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द क्वेश्चन। सॉल्व कर सकते हो या नहीं, हाँ या ना, एक बार रिप्लाई कर दो। सॉल्व कर सकते हो तो हाँ रिप्लाई करो, नहीं कर सकते हो तो ना रिप्लाई करो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं है, कर सकते हो क्या, ये पूछ रहा हूं। सॉल्व करना नहीं है, कर सकते हो हाँ या ना? दो साइड्स दी हुई है, सो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4
या S1 plus S2 plus S3 plus S4 square is D1 square plus D2 square. ठीक है, चलो let's move to the trapezium. So in trapezium PQRS, RS is parallel to PQ. RS is 5, SP is 25 and PQ is 30. Find the perimeter of the trapezium. ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ गया है. So I got only 2 answers as of now. 90 and 420. So let's make it 3. संस्कार आया आपका? सर पेरीमीटर नहीं आया. ठीक है. What is this? 24? ठीक है संस्कार, अनम्यूट रखो. यस सर. ये 25 है, ये 24 है. So if I apply Pythagoras theorem, I will get this as 7. यस सर. Now if I drop one more height, क्योंकि ये 5 था, तो this is also 5. यस. This is 7. This is 5. Total 30 है, तो 7 और 5 12 हुआ, तो this will be 18. 18. ये 18 है, height 24 है. So if I apply triplet, 3 parts, 4 parts, so this has to be 5 parts. Yes. So let's find the perimeter. 25 plus 5 30. So yes, this has to be 30. So 30 plus 30, 30 plus 30 is 60. 60 plus 30 is 90. So perimeter should be 90, है ना? Yes sir. Okay. सर वो क्लिक हुआ था. हाँ. वो कंफर्म नहीं था कि अगर दो अपन परपेंडिकुलर डालेंगे साइड पे तो इक्वल ही आएगा वो बिल्कुल. तुम्हारे हॉल की जितनी हाइट है उतनी तुम्हारी बेडरूम, उतनी तुम्हारी किचन की होंगी, वो चेंज थोड़ा ना होंगी. यस सर. तो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दोनों भी हाइट है वो तो सेम ही होने चाहिए. यस सर. राइट. नहीं मतलब वो हाइट जो है हाँ. वो एसआर और मतलब एसआर और जो अपना 5 जो आया ना वो इक्वल होगा. वो थोड़ा डाउट था. यस. अच्छा ओके. स्टिल अगर ये देखो
कि ये दोनों पैरेलल लाइन है? यस सर। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यस सर। ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, राइट? ओके। यस ओके, सो यस, क्वेश्चन नंबर 16 सभी को क्लियर? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो। किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन रेज द हैंड। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक आई गेस 2 more questions आज के लिए। सो लेट्स मूव टू द सेकंड लास्ट वन। इन अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD, ध्यान से डायग्राम बनाना। AB is parallel to CD. If AB is 12, BC is 26, CD is 40, DA is 30. Find the area of the trapezium. AB is parallel to CD. AB 12, BC 26, CD 40 और DA 30. Find the area of the trapezium. ओके, गुड। हर्षल बढ़िया, अश्विनी ये भी ठीक है। सो प्लीज कंफर्म, आप सभी का डायग्राम ऐसा ही बना था? Okay, now I have 2 choice to solve this. The first one is using equations, the other one is using triplets. So let's start with equations first. This is my height. If I assume this as x, so in this triangle I would say h square is 30 square minus x square. Please reply in the chat box. Is the first equation clear to all? If this is x, this is 12. So एक 40 में से पहले 12 कम किया तो बचा 28, 28 में से x कम कर दिया, so this should be 28 minus x. Please reply, this is 28 minus x. Is this part clear? Now for the second equation, for the second triangle, I would say h square is 26 square minus 28 minus x square. Please check. Second equation clear? So what I need to do is, I need to just equate this. 30 square minus x square is 26 square minus 28 minus x square. If I solve this, this is not a quadratic equation, this is a linear equation. If I solve this, I will get the value of f. If I get x, I can get h. If I get h, I can find the area of trapezium. So is the logic clear कि कैसे solve किया है? Or should I solve this? Clear? Or should I solve this?
ठीक है. Now, what is the other way of solving this? I'm going to some assume numbers. Yes, Raghav. ठीक है. अब मैं क्लास के बाद उसको सॉल्व करके देता हूँ. I'm going to assume some numbers. 26 है. 26 के साथ अगर ट्रिपलेट बनाने की बात आती है तो 26 के साथ बैठता है एक 24 एंड 10. अभी के लिए मैंने अज्यूम किया कि ये 24 है और ये 10 है. क्योंकि ये 24 अज्यूम किया, दिस इज ऑल्सो 24. अगर ये 24 है, ये 30 है. 24 एंड 30, so this has to be 5 parts, this is 4 parts, so this has to be 3 parts, which is 18. ये 18 आना चाहिए. ये 12 है तो ये 12 ही आना चाहिए. और ये 10. सो क्या ये 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 10 40, 40 बन गया है. मतलब जो मैंने डायग्राम के लिए प्रोपोर्शन सोचे थे वो बिल्कुल करेक्ट बैठे हैं. और अगर वो करेक्ट बैठे हैं यानी मेरे जो नंबर्स है वो बिल्कुल करेक्ट है. आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट. सो 52 का आधा 26 into 24 which is 624. Please check question number 17 clear. राघव, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था सॉल्विंग में? मतलब वो क्वाड्रेटिक आराम इक्वेशन से सॉल्व करते नहीं समझ. नहीं, वो बाद में क्वाड्रेटिक समझ आ नहीं गया है बहुत सारे. वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो लीनियर है. वो दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कट जाएगा. ठीक है. ओके. स्टिल इफ यू वांट मैं क्लास के बाद करा देता हूँ. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू दी लास्ट. नहीं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन. दिस इज सिंपल क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज का. In a trapezium ABCD, AB is parallel to DC, BC is perpendicular to DC and BAD is 45 डिग्री. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. अगर इसका डायग्राम सही से बना लो तो डायग्राम सही से बना लो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सॉल्व करने जैसा. डायग्राम गलत, कितना भी दम लगा लेना, क्वेश्चन नहीं बनेगा. और कित की चेकिए तो कैलकुलेशंस फिर से थोड़ा सा गलत हुआ आई गेस. नाउ 2 पॉइंट्स यू शुड नो कि इसमें दो एंगल दिए हुए हैं. BAD 45 डिग्री गिवन है और क्या दिया है, BC इज परपेंडिकुलर टू DC. अगर BC इज परपेंडिकुलर टू DC है, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? जल्दी से सोच के बताओ. BC इज परपेंडिकुलर टू DC है तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? सभी लोग रिप्लाई करो चैट बॉक्स में.
एंगल BCD यानी एंगल C 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में आती है कि हमारा अगर हम डायग्राम बनाने का सोचे भी तो डायग्राम में एंगल A 45 डिग्री वाला ऐसा होना चाहिए और एंगल C 90 डिग्री होना चाहिए ऐसा। A और C अपोजिट है, तो ध्यान से अगर मैं सोचूं तो मेरा डायग्राम A B C D, this is 90 and this is 45 degree. BC is perpendicular to DC. डायग्राम क्लियर सभी को? एक बार रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में हाँ या ना। Now BC is given as 4 and DC is given as 5. ठीक है जी, तो आगे सोचते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। अब वानी अनम्यूट करके बताओ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। वानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सो AB और DC पैरेलल होनी चाहिए ना? हाँ ना फिर सर, से वही। बोलना अनिमेश। AB और DC पैरेलल होनी चाहिए ना? AB और DC पैरेलल होने चाहिए। क्यों भाई, क्यों होने चाहिए? क्वेश्चन में दिया है ना सर। सर क्वेश्चन में दिया वैसा तो डी की ओके, जगह राइट बी राइट होना राइट 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 राइट, मैंने कुछ गलती करी है। AB पैरेलल DC मैंने अब तक बनाया ही नहीं है। ठीक है, लेट मी चेक। A हमारा 45 डिग्री है और C हमारा 90 है। ठीक है, सो आई नीड टू चेंज A, और अगर A को चेंज करना है तो A को अब कैसे चेंज करें? A 45 ही रखना है और A शुड बी 45 डिग्री। ठीक सर है, डी की जगह बी लिख दो और फिर बी की जगह डी डी लिख दो ना। चेक करते हैं उसमें हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, ये जो दो पैरेलल है पहले उसको बना लेता हूँ। इफ आई ड्रॉ दिस A B, this is 45 डिग्री, दिस इज ABCD, तो BC is perpendicular to DC, और क्या बोला है? AB is parallel to DC. Now it's work. हाँ, अब ठीक है। मेक सेंस? रुपेश, अनिमेश? यस सर। ठीक है, अब क्या बोला है? DC 5 है और BC 4 है। ओके, सो यस वानी, अब बताओ आगे का क्या करेंगे वानी। So what I'll do is height same है, so this is also a 4, ये 4, ये 5, let me name this as AO. So I can find this area of rectangle which is 4 into 5 20. अब मेरे पास सिर्फ ये एक ट्रायंगल बच जाता है, इसका एरिया निकालना बाकी है। क्योंकि ये 45 है, so this will be 90, this is also 45. If this is 4, this is also 4. So area of this triangle is half base into height. So it should be 8. तो ये वाला एरिया 8 और ये 20, तो 20 और 8 28. So answer should be 28. Although you can apply the area of trapezium as well, half sum of parallel side into height. Again वो 28 ही मिलेगा. So please check, is this question clear now or not? किसी को कोई डाउट है इसमें? भूमिका, मयूरी? कौस्तुभ? ठीक है, so this was the yes, इसका डाउट है? ठीक है, so with this I am done for the day. किसको अब और डाउट है वो लोग रुक जाओ,